Hello everyone. Today we'll see the Article 16 of Indian Constitution. Okay, last class we have seen the Article 15. So if you have not watched, please watch that article as well. Okay, so what Article 16 says? It says before that it comes into again Part 3 of Indian Constitution, and it deals with the fundamental rights, and this is also comes into right to equality. Okay, so please remember Article 14, 15, 16, these all comes into right to equality, but their individual meaning is different. Okay, what Article 16 says, equality of opportunity in matter of public employment. ठीक है, जब भी Article 16 की बात हो रही है, so equality of opportunity in matter of public employment. ठीक है, जो भी हमारे सरकारी जॉब्स होते हैं उसमें इक्वालिटी की बात हो रही है. Okay, so we'll see one by one all clauses, what this article says. So clause 1 says there shall be equality of opportunity of all citizens in matter relating to the employment or appointment in employment or appointment to any office under the state. State again मैंने बोल दिया ना कि you can say that government jobs. Okay, so even देखिए गवर्नमेंट जॉब्स है, बट अगर कोई ऐसा प्राइवेट है जो भी एडेड, I mean they are financed by government, so that will also come into state. So you see, before you please see the meaning of state. I have already completed in the previous articles, so if you are following you will come to know what is state. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो क्लॉज 1 से इट सेज इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, स्टेट के जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, और इट कैन बी एनी ऑफिस, देयर विल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं है कि आप किसी रेस के हो, किसी कास्ट के हो, या फिर तो आपको डिनाई किया जाएगा. दैट कैन नॉट बी डन, स्पेशली फॉर जॉब्स. देखिए, जो 15 था वो जनरल बात कर रहा था कि वो इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आप शॉप्स पे जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूडेड हो जाएगा. ठीक है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही थी, सब सारी चीज़ों की बात हो रही थी, बट 16 जो है स्पेशली बात करता है जॉब के बारे में. ओके, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस वी हैव टू remember. Clause 2 says no citizen shall on ground only on religion, race, caste, sex, descent or place of birth, residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment of office under the state. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कोई भी पर्सन with respect to these things, okay, religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, वो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे डिनाई या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है. ओके, दिस इज द मीनिंग. ओके, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ क्लॉज 2. क्लॉज 3 says nothing in this article shall prevent Parliament for making any law prescribing in regards to a class or classes of employment or opportunity to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment और अपॉइंटमेंट. ठीक है, मतलब कहने मतलब ये कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सो पार्लियामेंट कैन नॉट प्रिवेंट. ठीक है, मतलब जॉब विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स वो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं किसी को भी विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, लिख के रखा, पढ़ लो इसको एक बार. क्लॉज 4 सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state for making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward classes,
or citizen which is in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. ठीक है, फिर वही चीज़ है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन एंड ऑल दोस थिंग जो है हमारा वही चीज़ रहेगा, इसमें कोई चीज़ प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं. ओके, सब क्लॉज A says, I mean sub clause A of clause 4, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation. वही सब चीज़ें देखिए, बार बार आपको मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. कुल मिला जुला के आपको जॉब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, यही कहने का मतलब है. अब उसी चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं. इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, ठीक है, वही चीज़ है, प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास, ठीक है, और पोस्ट और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट. ठीक है, कुछ इसमें ऐसा बताने वाला नहीं, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो है वही चीज़ है. सब क्लॉज B says nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancy. ठीक है, मतलब अगर कोई अनफिल्ड वैकेंसी है तो वो सब सारी चीज़ें फिल की जाएंगी. ठीक है, of a year which are reserve of being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under the clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled in any succeeding year or year, and such classes of vacancies shall not be considered together with the vacancy of the year in which they are being filled up to the determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancy that year. देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जैसे हर साल की वैकेंसी आती है ना, तो उसको उसी साल में फिल किया जाएगा, और ये जो फिल किया जाएगा और ये 50% की सीलिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस साल वाला नेक्स्ट ईयर फिल किए करेंगे, कुछ वैकेंसीज का काट के नेक्स्ट ईयर में करेंगे, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जैसे अभी UPSC में ऐसा हो रहा है कि उसका प्रीलिम्स आई थिंक मार्च में होने वाला था, बट अभी वो जुलाई में होगा. तो इस पीरियड में जो वैकेंसी ना आएंगी गवर्नमेंट, अभी आई थिंक 220 सीट्स था, बट अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि देयर विल बी 550 या 600 वैकेंसी, बिकॉज इस पीरियड में मार्च से लेके जुलाई के बीच में जो भी वैकेंसी आएगी उसको नेक्स्ट में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है ना. तो उसको जो लोग 23 में या 24 में रिटायर हो रहे हैं तो उनको 24 में ही फिल करेंगे ना, उनको अलग से 25 में थोड़ी ना फिल करेंगे. तो ऐसा ही बोला जाता है. देखिए ये चीज़ अगर वो ऐसा करते तो इट विल बी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये आर्टिकल 16 का वायलेशन हो जाएगा यहाँ पे सीधा. ठीक है, तो उसी साल में होगा. और ये जो 50% सीलिंग है, मतलब SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो तो दिया ही जाएगा. दिस हैज़ टू बी कंसीडर्ड. ऐसा इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द क्लॉज 4 सब क्लॉज B. ओके, अब इसमें ये देखिए 2 4 ये सब पहले नहीं था, कब आया ये सब चीज़ें आप देख सकते हो. 2 जो है आया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995. जो 4 आया है वो ना 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000. ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी केस जो था उसमें ये 50% वाली चीज़ आ गई थी. ठीक है, और ऑब्वियसली उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट में ना प्रमोशन वाली बात हुई थी, वो सब चीज़ें थी. तो सो दैट्स वाई दिस थिंग केम इनटू पिक्चर. ओके, सो these things also you have to remember. Okay, इतना important नहीं है, but I have seen many question in the state PSC where they have asked like when this amendment has done, कौन से amendment के through ये हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए. Okay, so this 2 was done by the 77th Amendment Act, and
and the fourth was done by 81st Amendment Act 2000. Now clause 5th says nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of governing body thereof shall be person professing a particular religion belonging to the particular denomination. ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि अगर कोई बंदा है वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो सो विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन दैट पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड. ओके, सो दिस इज द होल मीनिंग. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड होते हैं वो काफ़ी उसका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट वॉट आई अंडरस्टूड that I will try to explain you. Okay, आपको देखिए लाइन बाय लाइन नहीं याद रखना, बट आपको होल जिस्ट ऑफ आर्टिकल यू हैव टू नो दैट. ओके, हाँ, आर्टिकल 16 में ये होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. ठीक है, 15th में ना जो विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, वो चीज़ है. फिर 14th में ऐसा होता है कि ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये चीज़ होती है. But these all three comes into right to equality. So ऐसे broader हमें पता होना चाहिए. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है we can answer. 6 says, clause 6 says, अगर देखिए ये शुरू में नहीं था, बाद में इसके थ्रू डाला गया था. आप पिछली स्लाइड में जाके देख लीजिएगा ये कौन सा अमेंडमेंट है. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in the clause 4 in addition to the existing reservation and the subject to the maximum 10% of the post in each category. देखिए again ये हुआ क्या, ये चीज़ जब EWS आया था तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में दो जगह पे ये चीज़ें ऐड की गई थी. हम लोग 15 में देखे थे, दैट वाज टॉकिंग अबाउट एडमिशंस इन द इंस्टीट्यूशंस. बट 16 में क्या हो रहा है, इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है. इसमें अब जैसे कि OBC SC ST के होते हैं परसेंटेज रिजर्व सीट के, उसी तरीके से EWS के लिए 10% रहेगा. ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, ये चीज़ ये बाद में, शुरू में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया था. ठीक है, अब थोड़ा सा याद करिए 13 क्या बोल रहा था कि जो दिया हुआ है वो चीज़ नहीं हटाया जा सकता, बट उसमें चीज़ें ऐड की जा सकती हैं. हमें और राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दिया जा सकता है, बट वॉट एवर वी हैव दैट कैन नॉट बी टेक अवे. ओके, सो you can see here, so article there has been changes. I mean, I will not say changes, they have added new clauses in article 15th with respect to reservation in the educational institutions, and in article 16th with respect to public employment. Okay, these two clauses has been added in article 15th and 16th.